Namaste. Today we are having a नमस्ते। discussion. Today we are having a discussion with one of the most special guests that I can have on this channel. He's one of my friends from my childhood days. His name is Vivek. Uh, so let me just give a brief introduction of Vivek for the time being, and then Vivek can later take on for his introduction and carry on forward. So Vivek, actually, I myself and Vivek, we did our 12th and 10th from the same school, which is Guru Gobind Singh Public School in Bokaro Steel City, and thereafter we gave JEE Mains and JEE Advanced, wherein Vivek got a extremely good rank, and he got a chance to study at IIT Dhanbad, but he did not take that chance. And then we both went together to BIT Sindri, wherein we studied for 1 year together, and then thereafter Vivek carried on forward, and I left BIT because of some personal issues. And then Vivek continued for the 4 years at BIT Sindri in the Department of Electrical Engineering. And after passing out, he gave GATE examination in 2019 and 2020. In 2019, he got a GATE rank of 400 something, and in 2020, he got the rank of 100 something. And both of his ranks were too good. So in 2019, he tried being ethically, on the right side of it, and he did not apply for the IITs and all. He was focused on PSU, and he thought I should not waste a seat of IIT because I just want to go for PSU. So he was very directed, but still, since he was not able to get through one of the PSUs, he gave GATE examination again, improved his rank even further, but this time he did not make the mistake of going, ethically correct way. He applied for the IITs. He got into IIT Bombay for sure because his rank was extremely, good. And later on, he got selected into Power Grid as well. So for now, he is into Power Grid, and he cracked both AET and ET of Power Grid. So we are going to talk to Vivek, know all about his journey, his preparation for GATE examination, and how he cracked the PSUs, how it was to settle down for the PSU. He also studied in IIT Bombay for 3 months, so he can be a person who can compare the life of PSU and IIT. So let's know from him. So Vivek, welcome. धन्यवाद अमित। नमस्कार सभी को। तो हाँ, तो मैं अपने बारे में बताओ। इस समय मैं पावर ग्रिड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पे हूँ। इसके पूर्व मैं पावर ग्रिड में ही असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के पद पे था। 2019 से मैं AET पे था और 20 से मैं ET पे आया। इसके पूर्व मैं 2018 में पास आउट हुआ था, फिर 19 और 20 में मैंने गेट दिया था। तो BIT सिंधी से मैंने बीटेक रहा है। उसके पूर्व 11 to 12 में अमित के साथ ही गुरु गोविंद सिंह में अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया था। 8 से हम लोग साथ थे मित्र। हम 9-10 से हम लोग सेम क्लासमेट बने थे, और 11-12 में भी हम क्लासमेट होते, बट अभी तो सेक्शन चेंज कर लिया। उसके अलावा फिर हम कॉलेज में भी साथ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज में फिर अमित सिविल इंजीनियरिंग में था, और अभी ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आ गया। फिर मैं अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रहा था। ये संक्षेप में इंट्रोडक्शन हो गया। सही। तो विवेक यार, देखो ये डिस्कशन पूरा इनफॉर्मल होने वाला है, क्योंकि हम और विवेक आपस में एक साथ कभी भी फॉर्मल नहीं रह सकते, ठीक है ना, क्योंकि इतने वर्षों से हम लोग साथ हैं, फॉर्मेलिटी रह ही नहीं पाएगा। तो ये डिस्कशन को पूरी तरीके से इनफॉर्मल रखते हैं, और उसमें क्या होगा, नेचुरल जो मतलब हम लोग का इंटेंट है, नॉलेज है, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो विवेक, तुम अभी ये बताओ कि जब तुम BIT में थे, BIT गए, उससे पहले तुम्हारा JEE एडवांस में भी बहुत अच्छा रैंक था। अच्छा रैंक था, बहुत अच्छा नहीं था तो अच्छा था। तुमको IIT धनबाद मिल रहा था, तुमको जादवपुर भी मिला, और जादवपुर ठीक है, हम दोनों को मिल सकता था, शिवपुर भी मिल सकता था। तुमको जादवपुर मिला, तुम्हारा और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता तुमको, क्योंकि तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा था। तुम IIT धनबाद भी छोड़ दिए, जादवपुर भी छोड़ दिए, उसके बाद BIT गए मेरे साथ। तो अभी जब तुम उसको इंट्रोस्पेक्ट करके देखते हो तो कैसा लगता है कि डिपार्टमेंट अधिक इंपॉर्टेंट है या कॉलेज का डिग्री अधिक इंपॉर्टेंट है? क्या मतलब किस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए? अभी के समय में देखूं, जो भी डिसीजन लिया था, तो मुझे लगता है काफ़ी सही डिसीजन था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो था वो BIT से काफ़ी सही था। ISM में इसलिए नहीं किया था कि ISM में जो ब्रांच मुझे मिला था वो मिनरल इंजीनियरिंग था, माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं था। माइनिंग इंजीनियरिंग ISM का फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसा है। तो फिर इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कंटिन्यू रहा था, और ज़्यादा पर मुझे केमिकल मिल रहा था। हालांकि वो लगता है कि सिविल में अपडेट हो जाता, बट उस समय के हिसाब से मुझे लगता है ये सही था। हालांकि BIT कॉलेज थोड़ा दोनों से पीछे है। सवाल अगर प्रश्न ये है कि कौन से चीज़ को चुनना चाहिए, डिपार्टमेंट चुनना चाहिए या फिर कॉलेज चुनना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जब कोई कक्षा 12 या 10वीं में होता है, तब किसी के लिए भी ये डिसीजन
ले पाना सही नहीं, मतलब काफ़ी टफ होता है टफ होता है। क्योंकि कॉलेज का भी अपना महत्व है और ब्रांच का भी अपना ही महत्व है। तो उस समय बच्चे को नहीं पता होता है कि वो करना क्या चाहता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक बच्चों को नहीं पता तो करना क्या चाहते हैं। क्या वो अपना बहुत लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद भी लगता है मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं बनना। बहुत लोग मैकेनिकल में रहते, लगता है कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, मैंने मैकेनिकल लेके गलती कर दिया। पॉइंट। तो उस समय ये सोच पाना कि क्या उसके लिए सही, काफ़ी टफ रहता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डिपार्टमेंट सही लेते हैं तो आप आगे जाके, जैसे कॉलेज में ज़्यादातर इसलिए तो प्लेसमेंट अच्छा होता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा और भी कुछ है, कॉलेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर देता है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ सीखने को मिलता है जो कि आपके ब्रांच के ज्ञान के अलावा होता है। आप नेटवर्किंग सीखते हैं, आप को-करिकुलर एक्टिविटीज़ फेस्ट वगैरह में भाग लेते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी कुछ सीखते हैं जो कि डिग्री आपको नहीं दे सकती है। तो इसका भी अपना ही है जो बीआईटी में करने की थोड़ा बहुत होता है। हालांकि मैं किसी भी क्लब वगैरह में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा था, कुछ में मेरा एक्टिव रहा था, लेकिन ज़्यादातर मैं अलग ही आइसोलेटेड ही रहा था। तो तो ये विद्यार्थी को खुद से सोचना पड़ेगा उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, कि उनको खुद में इंटरेस्टेड करना पड़ेगा 12वीं कक्षा में, जो कि आसान नहीं होगा। वो संभवतः दूसरे लोग जो बात करते हैं कि आईआईटी सबसे बढ़िया है, एनआईटी उसके बाद है, फिर बाकी थर्ड टीयर्स वाले कॉलेज उसके बाद आते हैं। नाम पे ही जाएंगे, फिर नाम में जो अच्छा मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये लोगों को खुद से ही करना पड़ेगा, और ये सरल डिसीजन तो नहीं होता है जी। तो यहाँ तो ये समझ में आ गया कि अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग चला जाए तो तुम बोलना चाहोगे कि बच्चे को ब्रांच देखना चाहिए, अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, ना कि टैग देखना चाहिए। उतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए टैग को। हाँ, दोनों का चीज। प्रोफेशनल सर्कल में आने के बाद जब हमसे पूछा जाता है कि तो अपना इंट्रोडक्शन दो, पावर ग्रिड वगैरह में या फिर पॉस्को के, या फिर जब एनटीपीसी सामने रिप्रेजेंट करता है तो लोग पूछते हैं कि आप अपना बैकग्राउंड दीजिए, सीनियर्स पूछते हैं। तो उस टाइम जो बीआईटी का टैग मेरे पास वो कैरी ऑन होता है, क्योंकि मैंने आईटी से डिग्री कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैं आईटी का टैग अभी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन बीआईटी टैग कैरी होता है। बट सत्य है कि उससे फर्क नहीं पड़ता आईटी, क्योंकि कॉलेज का अगर बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि और अच्छे कॉलेज से नहीं होते हैं, लोग प्राइवेट कॉलेज से भी आते हैं, आईएम जो कलकत्ता में, और से भी लोग उसी टाइप से लोग आते हैं। सत्य है कि बाद में जब आप प्रोफेशनल सर्किल्स में जाते हैं तो वहाँ पे लोग अपने मेरिट से आते हैं। तो जो टैग आपके पास होता है आपका मेरिट होता है, वो कॉलेज क्या है वो कम हो जाता है। लेकिन कहीं रहता है वो, अगर आपको बोलने में अच्छा लगता है कि आईटी आपके पास है तो अच्छी बात है। ये लोग आईटी से भी आते हैं, आईएम से भी आते हैं, बीआईटी से भी आते हैं, एनआईटी से भी आते हैं, सभी लोग एक रूम में बैठते हैं। ट्रू। तो ठीक है, तो बीआईटी सिंदरी में जब आप गए, अभी आपने 12th कर लिया, आपने आईआईटी धनबाद छोड़ दिया, जादवपुर छोड़ दिया, बीआईटी सिंदरी में आए। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस बीआईटी सिंदरी का भी बताइए, कैसा रहा वहाँ पे, क्या रहा? बीआईटी सिंदरी अभी मैं जब उस समय था, जब मैं पास आउट हुआ था 2018 में, तो उस समय तो कॉलेज जो अपना कॉलेज रहता है वो खुद से देखा हुआ रहता है, और बाकी जो कॉलेज होता है वो सुना हुआ होता है कि अच्छा आईआईटी में दोस्त है उनका ऐसे ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। बट सत्य है कि जब मैं खुद आईआईटी में गया, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में रहा, मैं एक सेमेस्टर पूरा रहा था, बस 3 महीने नहीं रहा था, एक सेमेस्टर पूरा था, सेमेस्टर पास भी किया था उसके बाद तो फिर मैंने ये देखा कि जो आईआईटी का जो होता है, जो स्टडी सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है, वो सच में अलग ही होता है। और ये बात बॉम्बे के साथ सही है, मद्रास के साथ सही है, सबके साथ। जैसे कि आईआईटी धनबाद हो रहा है, मुझे लगता है आईआईटी धनबाद से आईआईटी का ले लेना चाहिए, वो आईएसएम ही ठीक है, वो आईआईटी के उस लेवल पर नहीं आया। लोग कहते हैं कि भारत में बस 5 ही आईआईटी है, खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे आईआईटी, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। अमित, वीडियो फ्रीज हो गया तुम्हारा, वीडियो मेरे लिए। वेलकम बैक। हाँ, सॉरी। तो आप बता रहे थे तुम कि जब आईआईटी बॉम्बे गए तो 3 महीने नहीं, पूरा एक सेमेस्टर रहते हैं। हाँ, क्षमा करना, हम गलती से 3 महीने बोल दिए, पर एक सेमेस्टर आईआईटी में 4 महीने का ही होता है ये भी सत्य है। तो बेसिकली तुम 4 महीने, हाँ ठीक है, एक सेमेस्टर है, तो अब तुम कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हो कि बीआईटी और आईआईटी का, मतलब तुम एक तरह से कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करना चाहते हो। आईआईटी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक मीडियोकर कॉलेज का है, कि जो एक होता है, जो पॉलिश्ड एजुकेशन सिस्टम होता है कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना लेने को तैयार है। तो सत्य है कि बीआईटी कहीं ना कहीं यही एक अच्छा कॉलेज का फायदा ये होता है कि उस कॉलेज में सभी लोग काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं, लोग आगे अपने आप को इम्प्रूव करने, कोई मीडियोक्रिटी पे सेटल होने को तैयार नहीं होते। काफी लोग होते हैं, कॉलेज में जाकर समझ में आ जाएगा, काफी लोग वगैरह पे बिजी रहते हैं, लेकिन
बीआईटी लार्जली वो वैसा इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। आईआईटी में आपको कल्चर ऑफ एग्जाम समझना पड़ेगा। आपका हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ परीक्षा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बन रहा होगा, आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स आ परीक्षा रहे दोनों होंगे। साथ में दे रहे हो, असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट काफी कुछ रहता है। तो लोग काफी दे आर ऑलवेज ऑन देयर टू। मैंने ये देखा है राइट। कि बॉम्बे में इतना काफी प्रेशर होने के बाद भी लोग उसको मैनेज करना जानते हैं। लोग समझते हैं कि कैसे वो इस सबको हैंडल करेंगे। उसके बाद भी लोग खुश रहते हैं, उसके बाद भी लोग फेस्ट में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद भी लोग गिटार सीखते हैं, ड्रमिंग सीखते हैं। ट्रू। तो सत्य है कि ये जो परीक्षा की ये सब कॉलेज जो परीक्षा होती है, आईआईटी जे, ये सब ऐसे लोग जो कि वो मेहनत करने को तैयार नहीं होते हैं, उनको वीड आउट कर देती है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको अच्छे लेवल के लोग ही मिलेंगे। पीएस अच्छा रहेगा। तो पीयर्स आपके अच्छे रहेंगे, पीयर्स आपके और ये भी ये सारे एक अच्छे कॉलेज में ये आवश्यक नहीं है कि सारे के लोग अच्छे ही लोग हो सकता है। कुछ Correct. लोग अपने अपने जो एथिक्स है, जो अपना मेहनत करने के एथिक्स, अपने डिसिप्लिन होते हैं, जो 11-12 में था कोटा वेटा में या फिर जहाँ पे रहते वो छोड़ दिए हो। वो आराम से सुस्ताना चाहते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद। हाँ। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि जो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर के जो कॉलेज है तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उनको लगता है कि मेरा जो लेवल है वो अच्छा है, ये जो भी परीक्षा आईआईटी जे या मेंस रहता वो उनका जो भी लेवल था उसको अच्छे से मेजर नहीं कर पाया था। तो अब वो डिसाइड करते नहीं है, मैं अब इम्प्रूव करूंगा यहाँ से। तो आपको सेकंड टीयर कॉलेज में भी आपको काफी ज्यादा अच्छे विद्यार्थी मिल सकते हैं। तो आप ट्रू। सेकंड ईयर कॉलेज जाने के बाद भी आप अच्छा ग्रुप खोज सकते हैं। राइट। और ये ग्रुप से मेरा ये पूछना है कि देखो, जैसे हम थे तो हम जब बीआईटी छोड़े और हम जब हेरिटेज गए कोलकाता में, तो मेरा था कि अधिक लोगों से मेरा एसोसिएशन नहीं था। मतलब पूरे मेरे बीटेक में मेरे अधिक कोई मित्र रहे नहीं ऐसे, है ना। जब बीआईटी में थे तो हम लोग, हाँ, और ऐसे बीआईटी में जब हम लोग थे तो हम लोग साथ रहते थे। हम लोग का 3-4 जनों का जो ग्रुप था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रुप होता है, जो किसी का भी एक फ्रेंड सर्किल होता है या जो होता है, वो कितना इन्फ्लुएंस करता है और कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे बनाना चाहिए, उस पर क्या कहना है तुम्हारा। क्योंकि बीआईटी में, जैसे अगर तुमको स्मरण हो कि बीआईटी में अलग अलग लोगों का एक जोन होता था, और वो हम देखे कि वो सभी जगह एग्जिस्ट करता है। आईआईटी में भी एग्जिस्ट करता है, हेरिटेज में भी करता था, बीआईटी में भी करता था। और वो जोन डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति कैसा जाने वाला है, उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो वो कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस पे क्या बोलना चाहोगे? इस पे ये कहीं ना कहीं ये मेरा अपना ओपिनियन रहा होगा। जैसे कि तुमने कहा कि हमारा अपना 4 लोगों का ग्रुप था, चारों के 4 लोग कहीं ना कहीं इस हिसाब से क्रैक थे, थोड़ा थोड़ा सबका अपना अपना कुछ ना कुछ तरह का पागलपन था। तुम्हारा था, मेरा था, बाकी अन्वेष और निखिल का भी था। और सत्य है कि तुमने भी आईटी छोड़ दिया, अन्वेष ने भी आईटी छोड़ दिया, फिर निखिल का अपना ग्रुप बनने लगा था। वो लोग थोड़ा वीड आउट रहते थे, चिल्ड आउट वाला जोन में जाते थे। तो मैं उसके बाद फिर अकेला हो गया एक तरह से। बस एक भी ग्रुप नहीं था। तो अपना जो, फिर मुझे अलग चीज समझ में आया कि अपना जो इंडिविजुअलिटी होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसको बनाना काफी ज्यादा कठिन होता है, बट एक बार वो जब बन जाता है, आप जब तैयार हो जाते हैं कि हाँ इसके लिए जो भी अनुशासन की आवश्यकता है आप वो देने को तैयार है, तब आप अलग तरह के आप इंडिविजुअल बन जाते हैं। आपको ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट। आप किसी भी ग्रुप में जाके अच्छा कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। जो आपको जो कंपटीशन और दो चीज लोगों के लिए होता है। कुछ लोग compete करते हैं, कुछ लोग कोलैबोरेट करते हैं। आप दोनों चीज करना सीख जाते हैं कि आप इंडिविजुअली एक यूनिट है। आपको दूसरे लोगों की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब होती है। आप ज्यादातर काम खुद से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिविजुअलिटी जो एस्पेक्ट होता है, इसे भी ढूंढना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। आप कितने ज्यादा इंडिविजुअल है। उसके बाद मैं कभी कहीं भी जाना रहता था, जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम लोग साथ में थे, तो हम लोग अकेले नहीं जाते थे। हम लोग 2 लोग या 3 लोग जाएंगे कांड्रा या फिर मेन गेट जाएंगे। उसके बाद जब उसको चले गए थे तो मैं अकेले जाता था पैदल रात में। जहाँ भी जाना था अकेले ही, मैं जैसे भी जाना था जा पाता था। तो मुझे लगता है कि आपका ग्रुप काफी ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आपका ग्रुप खराब रहे, लोग जो खराब ग्रुप में जाते हैं, जैसे कि कहावत है, फेदर ऑफ ब्लड फ्लॉक टुगेदर। हाँ, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ, अगर आपके 3 दोस्त नालायक है तो आप चौथे होने वाले हैं। इसका उल्टा भी सही है कि आपके 3 दोस्त अगर सही है, काफी ज्यादा एम्बिशियस है, वो अपने ड्रीम को फॉलो करे, तो आप भी चौथे होने वाले हैं। करेक्ट। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो फर्स्ट में काफी तेज जो थे, वो जब उनका ग्रुप संगत खराब होता है, ये सब ज्यादा हॉस्टल कॉलिंग के बाद ही होता है। हॉस्टल कॉलिंग में उनको उन पदार्थों से इंट्रोडक्शन हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, या फिर थोड़ा और लेट से होना चाहिए था। उसके बाद काफी ज्यादा चेंज, उसके बाद रातों रात लोगों का मतलब अचानक से मतलब चेंज हो जाता है।
वो लोग का जो भी मतलब कमिटमेंट था कि हाँ मुझे फर्स्ट ईयर में एक सेकंड ईयर में जो भी एम्बिशंस वगैरह लेके आते कि हाँ मैं 11 तो काफी तेज था, मैं थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तक कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा स्किल्स गेन कर लूंगा, सब निकल जाता है। तो वही तो वो बेसिकली लोग आप पदार्थों में हम बता दें दर्शकों कि बेसिकली वो शराब, दारू, वीड्स, यही सब आता है ना। हाँ ये सब ही आते हैं वो, और जितने भी हो सकते हैं। और अब हाँ ज्यादा ज्यादा अच्छे जगह पे जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में, तो आप कोकेनम वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। तो यही होता है, जैसे कि कितना ऐसा ऐसा कितना बार होता था कि जैसे किसी भी कॉलेज के बाहर जो होते हैं दुकान वगैरह, सभी कॉलेज के बाहर दुकान वगैरह होते हैं, तो 8 लोग अगर हम लोग हैं, ठीक है, सबके हाथ में सुट्टा है, मेरे हाथ में स्लाइस का बोतल रहता था। तो ये जो गुड। इंडिविजुअल ग्रुप में होने के बाद जो इंडिविजुअलिटी होता है वो पार्ट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, बट अपने आप खुद अकेले किया है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है जो कि सिर्फ आपके कारण हो रहा है, आपके अलावा कोई दूसरा आदमी हो सकता, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, क्या अलग हुआ जो सिर्फ आपके कारण हुआ है। तो ये चीज को डेवलप करने का टाइम काफी अच्छा होता है कॉलेज में। अच्छा कॉलेज में अगर आप अच्छे लोगों के साथ है तो आप अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी दिशा भी खराब ही होती है। ओके, अब जो इससे इससे दूसरा सेकंड पॉइंट जो आता है, जो आजकल मोस्ट कॉमन हो गया है, रिलेशनशिप है ना, जो कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इत्यादि इत्यादि बनने लगते हैं, या फिर लोग एस्पायर करते हैं, वो भी एक एस्पिरेशन ही बन गया, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल एस्पिरेशन बिल्कुल बन बन गया गया है। है। तो उस विषय में क्या कहना है? देखो मतलब मेरा व्यू पॉइंट तो अलग है, वो तो तुम ठीक है, वो कभी बाद में, पर तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है? उसको कैसे परस्यू करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने मतलब कि जो एम्बिशियस लाइफ है तुम्हारा, आगे का जो एम्बिशंस है तुम्हारा, उसको कैसे कोप अप करना चाहिए उसके साथ साथ। सत्य यह है कि व्यू पॉइंट हम दोनों का सेम ही था कॉलेज जाने हम्म के बाद। वो ये था कि जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो वो एक मूवी था ना, बॉलीवुड मूवी, मुझे याद, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाँ, उसके जैसा कॉलेज होगा। जैसे हाँ हम लोग को था, करेक्ट, हम वो लोग को तो सबका फैंटेसी वैसा ही रहता है, सबका हाँ, फैंटेसी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, जब हम लोग 11th में थे रहा हूँ नमित, हम लोग सोचते थे अगर हम लोग सेम कॉलेज में जाते हैं तो एक गुपचुप का स्टॉल खोलेंगे, और उस गुपचुप का स्टॉल में लड़कियों के लिए फ्री फ्री गुपचुप रहेगा, सिर्फ लड़कियों के लिए, बाकी लड़कों के डबल पैसा लगेगा। ये हमारा हाँ पटाने का, सब गर्लफ्रेंड पटाने का। राइट। और ये हाँ, बचपने में था, और ये मतलब कॉमेडी के लिए होता था, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब कि इसको अब सीरियस मत ले लेना। मैं सीरियस था लेकिन गुपचुप वाले स्टॉल। बाय द वे वो आइडिया अच्छा है, और मैं बता दूं आइडिया कि अच्छा ये था। अभी, ये एक्चुअली इस आइडिया पे एक बिजनेस खुल चुका है, पता है? इस यू आइडिया पे यू एक गाइस बिजनेस कैन, खुल चुका है। क्या सच में? अरे यार, हाँ लिटरली, हमें चाय सुट्टा रॉयल्टी बार, मिलनी चाहिए। चाय सुट्टा बार नाम का एक पूरा एक, अभी तो 100 करोड़ का वो स्टार्टअप हो चुका है, वो चाय सुट्टा अरे बार। यार। और उसके 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 जो स्थापक हैं, संस्थापक हैं, कोई पांडे हैं, हम्म। नाम मेरा विस्मृत हो रहा है, उनका एक अभी टॉक आया है, वो इस टॉक में बता रहे थे कि हमारा पहला एजेंडा यही था, हमने जो स्टॉल अपना पहला खोला वो एक गर्ल्स हॉस्टल के आगे खोला। विश्व हम भी यही करने वाले थे। हम भी यही करने वाले थे। अब सोचो हमारे आइडिया को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। सबसे पहले जो हमने लोकेशन ली, शॉप अपनी फाइनल की, वो शॉप हमने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में फाइनल की। उसका रीज़न ये था कि लड़कियों का क्राउड अगर आपने अट्रैक्ट कर लिया तो बॉस आपका काम हो गया, क्योंकि लड़के अपने आप आ जाएंगे। तो हमारा आइडिया सक्सेसफुल होने वाला था, ठीक है, आइडिया अच्छा था। आइडिया अच्छा यू था। गाइस कैन एक्सप्लोर इट। हाँ ठीक है, तो कंटिन्यू। सत्य है कि फर्स्ट ईयर मेरी गर्लफ्रेंड हो गई थी। वो भी ऐसे ब्रांच से, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल से था, ठीक, इलेक्ट्रिकल में 35 महिलाएं थी और 70 लड़के थे, 100 लड़कों का बैच था। सिविल जो था वो 120 का बैच था, सिर्फ 7 लड़कियां थी, ठीक है। मैंने उसमें से गर्लफ्रेंड पटा लिया उस टाइम। करेक्ट। वही फर्स्ट है कि सत्य है कि जिस मैंने उस टाइम पटाया था, मेरा रिलेशनशिप अभी मुझसे कंटिन्यूड है। अभी हाँ शायद 7 साल हो गए, नहीं 6 साल, 7 साल हो जाने वाले हैं। हाँ 2014 की बात है, अभी 21 हो रहे हैं। तो तो अच्छा रहा था वो, मेरे लिए अच्छा रहा था, ये इट वर्क फॉर मी क्वाइट वेल। राइट। ये कहूँगा कि फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना चाहिए, जो भी ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर तक सत्य है कि सबका, तब लड़कियां कम होती है, ठीक है, आईटी में तो और भी कम होती है, 9:1 का रेशियो हो जाता है फर्स्ट ईयर तक। तो कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है, और कुछ करना है तो आपको अपने टोज पे काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में कि आपके लिए वैकेंसी नहीं रहेगी। अमित ने भी ट्राई किया था। किसी के पास क्लीन चिट नहीं है, किसी के पास क्लीन चिट नहीं है। कोई क्लीन चिट नहीं है,
ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बताओ कि कैसे कैसे पता चलता है कि दिस इज द राइट, मतलब हाँ स्टॉप, यहीं पे रुकना है, दिस हाँ, इज जैसे राइट फॉर मी। जैसे 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 मैंने कहा ना कि अब जब बच्चे 11वीं 12वीं कक्षा से आते हैं बाहर, तो उन्हें नहीं पता कि ब्रांच सही है या फिर डिपार्टमेंट सही है, किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, हम्म कॉलेज या फिर ब्रांच चुनते वक्त। तो वैसे ही हम्म उस समय लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं होती रिलेशनशिप में क्या करें। उन्हें हम्म नहीं पता कि कौन सही है, क्या चीज़ सही है। तो ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो सकते हैं, फिर अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग हम्म ड्रामा के रेल में जा रहे हैं, बट हम्म चलिए चलते हैं ड्रामा का। लोग आप आगे पीछे आगे पीछे करना शुरू कर सकते हैं। मुझे काफ़ी काफ़ी सारा स्कोप है बिटर सीट में। ऐसा ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है कि अपने आप को ऐसे एक्सपीरियंस से डिवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा है या मतलब बुरा कि है हाँ, वो अच्छा है बुरा, लेट्स गो बियॉन्ड गुड एंड इविल। ये अच्छा है बुरा वो आप एक्सप्लोर। डिसाइड करें। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि बाद में काफ़ी ज़्यादा जब आप बड़े हो जाते हैं, जब प्रोफेशनल सर्किल्स में आते हैं, तो हम्म ये समझना आवश्यक होता है कि रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है, क्या वो चीज़ें जो कि महिलाओं को पसंद आती है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या क्या प्रायोरिटीज अगर आप किसी को चूज करना चाहते हैं। हम्म तो मुझे लगता है कॉलेज अच्छा टाइम होता है ये सब सोचने को। ये काफ़ी हम्म ज़्यादा भाग्य की बात है कि मुझे जो मेरा जो शिफ्ट रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था, और हम लोग उस पर मेहनत करने को रेडी हो गए थे। हम्म हमारा जिसकी हमारे बीच में ड्रामा बिल्कुल नहीं होता है, कोई झगड़ा हम्म नहीं होता है, कुछ बात नहीं होता। ये हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट किया बात जा करना सकता है। पड़ता है। हाँ, उसको हम लोग सीखे हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, लाइक कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा बना पाते हैं। बट सत्य है कि हम लोग ड्रामा से वाइड हो गए, ठीक है। तो हम लोग दूसरे कपल्स का जो ड्रामा हो रहा होता है, किसी का ब्रेकअप स्टोरी है, या कोई किसी को छोड़ के नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो हम लोग उन लोग के बारे में काफी डिस्कस करते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा हाँ इंट्रोस्पेक्शन का एक है ना हाँ, ग्राउंड आप है। देख सकते हैं कि क्या आपने किया जो कि वर्क हुआ, और क्या दूसरे लोग जो करे जो वर्क नहीं कर रहा है। हम्म तो समरी में आप ये बोलना चाह रहे हैं भाई कि कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन हैव अ रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिल्कुल एंड यू बिल्कुल कैन बिल्कुल स्टिल एक्सप्लोर कंटिन्यू विद करना योर चाहिए। स्टडीज, राइट? तो And try to get away from drama, like you should be you should be ready to commit to the work, and you राइट, should make other also to do the same, introspect within हाँ what wrong you have done, what wrong other have done. And also one thing, एक चीज जो चीज आप कॉलेज में नहीं सीख सकते वो कॉलेज के बाहर ही सीखनी है, कि आपका जो हम्म लाइफ का एम होता है, ठीक है, हम्म वो कोई लड़की नहीं हो सकती है। आपका लाइफ का जो एम है, जो भी आपका एम्बिशन है, वो आपका लाइफ का एम्बिशन है, वो करना क्या है, तो आपको अपने एम्बिशंस को फॉलो करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा जिंदगी में तुमको खुश रखने के लिए है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, दैट ओनली थिंग यू वांट टू कीप हैप्पी इज अ वुमन। मतलब ये सोचो भाई कि जीवन जो है ना वो बॉलीवुड का मूवी नहीं है, और बॉलीवुड हाँ हाँ, रद्दी है, मतलब वो भी नहीं है। उसको एकदम कचरे को मोड़ मार के और डस्टबिन में फेंक दो ऐसे, और उसके बाद जीवन सोचो। फॉलो योर एम्बिशंस, फाइंड व्हाट इज योर एम्बिशन इज, एंड देन फॉलो इट। कोई एक वुमन आपकी एम्बिशन नहीं हो सकती है। नहीं और हो सकती। और सेम गो सेकेंडली, फॉर अदर सेक्स। करेक्ट करेक्ट, कोई कोई लड़का आपका एम्बिशन नहीं हो सकता, राइट? हाँ हाँ और मेरे को तो लगता है कि रिलेशनशिप वही सही होता है, और मतलब कि ऐसे आप देख सकते हो जो आपको उस एम्बिशन को अटेन करने में एक मोटिवेशन रहे और हम्म। हेल्प करे हाँ हाँ, बेसिकली, है ना, सिंक्रोनाइज हो जाए सही है। आपका, ऐसा ऐसा। हाँ ये अपने आप नहीं ठीक है, होता, आपको मेहनत करना पड़ता है सिंक्रोनाइज हो पाए। राइट राइट तो ये राइट। ये गलती करने का, सीखने का काफी सही टाइम होता है कॉलेज। कि कॉलेज। आप जब बाहर आते हैं, प्रोफेशनल सर्कल्स में आते हैं, तो आपका जो मिस्टेक होता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। कॉलेज में से एक दिन का रोना धोना होता है। करेक्ट, एक दिन का रोना धोना, उसके बाद समाप्त हाँ कहानी। ये सही है। तो रिलेशनशिप पे इतना बात हो गया। अब आते हैं कि जब फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में आते आते वो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स का समय आने लगता है। तो फर्स्ट ईयर तो अभी हो गया कि चलो ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, और लड़कों को लड़कियों को एक्सप्लोर करते हैं, दोस्तों को एक्सप्लोर करते हैं, फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फेस्ट, ये सब में। थर्ड ईयर आते आते तक अगर बहुत टॉप टियर कॉलेज का बात ना करें, जैसे आईआईटी ये सब को छोड़ दो अगर, तो मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए और इंटर्नशिप के लिए, यहाँ आईआईटी में भी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए लोग सीरियस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर कंपटीशन इतना, इंटरनल कंपटीशन इतना अधिक होता है कि सब चाहते हैं कि टॉप नॉच कंपनी मेरे को मिल जाए, है ना, क्योंकि पीपीओ मिलने का ऑप्शन रहता है। तो सभी जगह होता है वो चीज़। तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए। और बहुत लोग जो नीचे के कॉलेजेस में होते हैं, नीचे मतलब आईआईटीज को छोड़कर, वो पीएसयूज निकालने के लिए, या आईआईटी में भी बहुत कोई पीएसयूज निकालने के लिए गेट देने लगे हैं, हाँ तो हाँ गेट का प्रिपरेशन प्रारंभ कर देते हैं फोर्थ ईयर में।
तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए कुछ बताओ, तुम्हारा क्या विचार है, मुझे क्या लगता तुम है कि कैसे फर्स्ट किए थे? जैसे तुमने हाँ हाँ जैसे तुमने कहा फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में काफ़ी मुझे लगता है कि ट्रैवल करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, नेटवर्किंग करना हम्म, चाहिए, जितना हम्म, ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करके सेकंड ईयर से आपको ये पता कर लेना चाहिए क्या क्या ऑप्शंस प्रेजेंट है आउटसाइड योर कॉलेज। कॉलेज के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना है, उसके लिए अभी कमिट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पता कर सकते क्या क्या चीज़ हो सकती है। कि आपने कहा ना प्लेसमेंट होता है, पीपीओज होते हैं, ये सब सेकंड ईयर में पता कर आपको नॉलेज हो जाना चाहिए पूरी तरह से। आपको मेहनत करना होगा, सीनियर से बात करना चाहिए, पिछले साल का जो रिकॉर्ड वो सब पता, गेट क्या एग्जाम होता है, क्या होता है, कैट क्या होता है, यूपीएससी का उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब डिसाइड कि क्या क्या ऑप्शंस है। थर्ड ईयर में आप हम्म, उन ऑप्शन से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम्म, पीपीओ वगैरह है तो मैं कहूँगा अगर पीपीओ में बेस्ट ऑप्शन बेस्ट जो भी ऑफर आपको मिल रहा है उसके उसको परस्यू करना चाहिए। आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, इंटरेस्ट है वो आपको उस समय नहीं सोचना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता आपको क्या इंटरेस्ट है। काफ़ी लोग होते हैं करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट में पीपीओ मिलने के बाद भी सोचते हैं मुझे माइक्रोसॉफ्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अमेजोन जाना है। अमेजोन में वो 2 साल काम करते हैं, फिर उन्हें वहाँ मजा नहीं आता, वो फिर उसे छोड़ देते हैं। तो राइट, हालांकि उसका काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है वो अलग इंडिविजुअल था, मैं अलग इंडिविजुअल हूँ। बट सत्य है कि आपको एक्सप्लोर करना अभी भी बंद नहीं हुआ, कॉलेज अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अच्छा ये हो कि आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, हम्म, कितना भी टफ हो सकती है, आपको 3 रात जग के उसका 3 लेवल का एग्जाम हो रहा हो, आपको 3 अलग चीज प्रिपेयर करना, आपको कोडिंग प्रिपेयर करना, कुछ ऐसे लिखना पड़ रहा हो, कुछ भी करना पड़ रहा हो, आपको मेहनत के लिए कमिट होना पड़ेगा। पहले आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि समझ पाए कि जो आपका एबिलिटी, पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपका क्या मैक्स एबिलिटी है। हम्म, आप अपने एबिलिटी से मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हो और हम्म, उसको आप किस लेवल तक बढ़ा सकते हो, कितने टाइम में, कि आप अपने लाइफ में ये लगातार करने वाले हो, कॉलेज के बाहर भी आप आवश्यक होगा कि आप अपने आप को पुश करते रहें। हम्म, तो ये अच्छा टाइम होता है कि आप सीख जाएं कि किसी भी चीज़ को जो आपको लगता है कि जो टफेस्ट है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन है, उसके लिए कैसे कमिट हुआ जाए। हालांकि हम्म, इंजीनियरिंग में जो लोग आते हैं ऑलरेडी जानते हैं, 11-12 के बाद जो आईआईटी या फिर एडवांस में जो भी होता है, लोगों को कंपटीशन का अच्छा खासा अंदाजा रहता है। लेकिन अब जो है, अब फील्ड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब बस एमसीक्यूज बनाना नहीं रहता, अब कुछ पर्टिकुलर स्किल्स में आपको मास्टरी लेना पड़ता है, वो कोडिंग हो या फिर मे बी स्पीकिंग हो, मे बी आप किसी सेल्स कंपनी में, कोई मैनेजमेंट कंपनी के लिए आप दे रहे हो, एनालिस्ट वगैरह, काफ़ी काफ़ी सारे डाइवर्स पोर्टफोलियोज है। तो राइट, बेटर हो कि आप बेस्ट वन पे, मतलब कि जो मोस्ट कम्पिटिटिव वन है, आपसे एक्सप्लोर करें। थर्ड ईयर फिर फाइनल ईयर में आप फाइनल ईयर तक आपके पास 1 साल होता है। हम्म, आपने जो कनेक्शन नेटवर्किंग बनाया था फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, आप दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, ताकि आपका पता है कि आपके जो प्रेजेंट पीयर्स जो आपके साथ हैं, सपोज कि आप जाते हैं कोडिंग में और कोई और जाता है एनालिस्ट बनता है, डाटा एनालिस्ट, जो कि अमेजोन वगैरह या फिर काफ़ी दूसरे लॉजिस्टिक कंपनीज को रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप पूछ सकते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उनका पीपीओ का जो 2 या 3 मंथ्स जो उन्होंने स्पेंड किया, उन्होंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, आप एक दूसरे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि जो पूरा पोर्टफोलियो है, जो मार्केट है, वो कैसा हो। हम्म, जैसे कि आपको अगर हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपको जानना है, तो आप किसी एक बंदे को कॉल करें, वो आधे घंटे तक आपसे बात करें, आपको उसके बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में को पता हो जाए। आपका ऐसा अच्छा नेटवर्किंग होना चाहिए। तो ये सब थर्ड ईयर में आपको पता हो जाना चाहिए, और फिर फाइनल ईयर में आप शूट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शंस था, ये ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, मैं इस ऑप्शन पे कमिट करना चाह रहा हूँ, या फिर इस कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, या फिर मुझे कोडिंग करना है, या फिर मुझे कैट या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे वही चाहिए नहीं चाहिए, वो आप फाइनल में उसके लिए थर्ड ईयर के एंड से या फिर फाइनल ईयर में आप उसके लिए कमिट हो जाना चाहिए। तो तो बेसिकली मतलब नेटवर्किंग रखना चाहिए सीनियर्स के साथ, जो भी ऑलरेडी प्लेस्ड है, जिनका भी ऑलरेडी पीपीओ लग जो चुका है या पीएस फिर है। इंटर्नशिप क्रैक किए हैं, ये करेक्ट, हम्म, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स रखने का, कॉन्टैक्ट्स बनाने का। नहीं है हम्म, तो बनाना प्रारंभ कर दो, हाँ नेटवर्किंग होना चाहिए, हाँ हाँ नेटवर्किंग इज द की, हाँ नेटवर्किंग के लिए ही आदमी कॉलेज आता है, नहीं हाँ तो सब कुछ ऑनलाइन ही सीख लिया जाता, कोई हाँ हाँ समस्या हाँ, नहीं, सीखने अवश्य के लिए अवश्य। ऑनलाइन है ना, जैसे मैंने फिजिकल कहा, फिजिकल। like I said, it begins from the first year. First year, you make the network, you explore and make the network. You continue making network till second year, and third year राइट, you try to exploit your network. You help your network and you exploit the network, so that in final year you're ready to shoot for your dream. You're ready. एम्बिशन, You're ready. You know what your ambition is. You know what your limitations are. You know what your strengths are, your weaknesses are, and then you shall be ready for your shooting for your aim. राइट, ट्रू। तो अभी हम लोग आगे की इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए बेसिकली सभी जगह यही फॉलो होता है, आईआईटी में भी होता है। यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है कि जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, वो ऑलरेडी जो प्लेस्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटर्नशिप लग चुका है, वो उनका रिकॉर्ड करते हैं वीडियो और हाँ डाल हाँ देते हैं हाँ ताकि सभी लोग देखें, हाँ वो होता है। अच्छा, अब बताओ कि अगर कोई उतने अच्छे कॉलेज में नहीं है बच्चा, जिसके पास उतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं,
कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट के लिए, तो उसके पास एक तो ऑप्शन है कि वो ऑफ कैंपस अप्लाई करे और उसमें क्रैक करके निकल जाए। दूसरा, बहुत लोग आईआईटी में भी आजकल बहुत लोग और एनआईटीज में और सभी जगह पे गेट देना चाहते हैं, क्योंकि गेट इज अ वे to the PSUs, right? And PSUs are like government jobs, well settled. No one is going to take you out of the company anytime soon, right? And you are also paid a huge, handsome salary. So of course, many people would opt for PSUs. Of course, you get a lot of learning as well. There's no denial in that. तो जब जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो कब स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या सोच कर करें, पूरा एक, क्योंकि तुम्हारा दोनों बार ही बहुत अच्छा रैंक रहा है गेट में, जो विच इज नॉट रियली एन इजी थिंग टू डू, स्पेशली व्हेन यू आर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, राइट? तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे टारगेट करना चाहिए, कैसा क्या मतलब कि माथे में क्या होना चाहिए, क्या सोच कर, सब कुछ बताओ। जैसे मैंने अभी जो रूल कहा था, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं, सेकंड टाइम आप ये पता करते हो क्या क्या ऑप्शंस है, थर्ड ईयर में आप उसके लिए कमिटमेंट स्टार्ट कर, फाइनल ईयर में शूट करते हो। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था। फर्स्ट ईयर तक मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या होता है, मैं सिर्फ मस्ती किया था, यहाँ घूमा था, गर्लफ्रेंड पटाया था। सेकेंड ईयर में मैंने पता कि क्या क्या होता है, मुझे कैट, यूपीएससी, गेट जितना सका मुझे पता लग गया था, मैं उसमें एक्टिवली पता कर रहा था मुझे करना क्या है। थर्ड ईयर में मुझे लगा कि मैं दो चीज़ करना चाहता हूँ। मुझे प्लेसमेंट जो भी मेरे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जो आती थी बीआईटी में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया, अभी जमशेदपुर से ज़्यादा कोर कंपनीज आ रही है। करेक्ट। तो मुझे लगा था कि मुझे दो चीज़ मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे यूपीएससी में अच्छा लगा था, मुझे कैट और गेट, मुझे लगा कि ये दो चीज़ें जिसके लिए मुझे कमिट होना चाहिए। मैंने थर्ड ईयर में कैट और गेट दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, जो कि असंभव है। मुझे एक महीने के अंदर पता लगा कि ये असंभव है, मुझे कुछ एक ही चुनना था। So at that time my girlfriend was pursuing for CAT, and so she was pursuing for CAT. तो मैंने ट्राई किया, मुझे देखा कि क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें पता क्या, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं अच्छा, मे भी ना लगा, मुझे गेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सत्य है कि जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं नहीं मुझे इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं हूँ, तो बहुत सारे होते हैं। लगता है कि एटलीस्ट 40% लोग तो आराम से मिल जाते हैं। करेक्ट। लेकिन हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं था। इंजीनियरिंग मेरा स्टार्टिंग से ही पैशन था, 11-12 से ही, मतलब मैं समझता इंजीनियरिंग होता क्या, कि ऐसा कुछ करना जो कि आपको नहीं पता है, बस पता है प्रॉब्लम है, आपको बस ये पता है, आपको जैसे स्काडा सिस्टम ये दिख रहा है कि ये आइसोलेटर जो है वो बंद होने के बाद भी स्काडा सिस्टम में शो कर रहा है कि वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन अब वो दिक्कत क्या है, आप जब जाते हो फील्ड में तो हजारों तार होते हैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि एक तार को अच्छा ये तार खुल गया, आपको दिख रहा है, वापस जोड़ दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको पता करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप कि अगला अच्छा ये चीज़ ठीक है, हो सकता है कि कहीं वायर में बर्न हो गया हो, तो उस समय इंजीनियरिंग काम आती है। वो आपको आप लोग डिसाइड, आप एक सॉल्यूशन, एक ट्रबल का सॉल्यूशन का पाथ डिसाइड करता है। वो सॉल्यूशन नहीं पता होता है, सॉल्यूशन खोजना होता है। इसका पैशन मुझे स्टार्टिंग से ही था, तो इसलिए मुझे कोर में जाने का मुझे शौक था। और कोर कंपनीज इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी कम होती है, ज़्यादातर कोडिंग या फिर डेटा एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस होता है। करेक्ट, जो अच्छा पेमेंट जो देती है वो पीएसयूज ही है। राइट। तो इसलिए पीएसयूज मेरे लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा था। तो मैं थर्ड ईयर से समझ गया कि हाँ मुझे गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, जब मैं फाइनल ईयर में जाऊँ। तो थर्ड ईयर से मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप गेट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो कुछ मेन पेपर्स होते हैं, जैसे कि जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, या फिर वो पेपर्स जो कि गेट पे पूछे जाते हैं, तो मैं उस पर ध्यान देने लगा था कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डीप पे पढ़ना चाहिए, जैसे ग्राफ्स में कॉलेज के सेम्स में हाँ कॉलेज के सेम्स में। सेकेंड ईयर मुझे ऐसा लग रहा था गेट में अच्छा ऑप्शन, लेकिन सेकेंड ईयर में ज़्यादा कमिट नहीं हुआ था। थर्ड ईयर के मे बी 6th सेम के बाद से, थर्ड ईयर 7th सेम में आ गया था, तो 7 नहीं 6th सेम तो थर्ड ईयर का ही होता। 6th सेम के बाद से मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया था, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब थर्ड में पढ़ाए गए थे। नेटवर्क्स तो फर्स्ट ईयर में ही हो गया था। हाँ, तो थर्ड ईयर टाइम होता है जो आपने जो पहले पढ़ चुका है, जिसमें मैंने नेटवर्क पढ़ लिया था, मशीन्स पावर सिस्टम 1-2 हो गया था सेकेंड ईयर में। तो मैं मैंने जो पहले पढ़ लिया था, जो ऑलरेडी बीत चुका था, उसको फिर से रिविजिट करने का टाइम होता है। जो आप पढ़ रहे हो अभी उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कुछ अच्छे नोट्स प्रिपेयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह, ये अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये चीज़ ऐसे, उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप उससे ज़्यादा मतलब कमिट हो जाते हो। फाइनली में आप कंटिन्यू करते हो और फिर आपको अपना गेट एग्जाम देना चाहिए। हालांकि अभी तो आप थर्ड ईयर में भी गेट एग्जाम दे सकते हैं। अब अलाउ कर दिया, हमारे बाद ही अलाउ कर दिया हमारे
ये अच्छा है, आपको पता लग जाए कि आपका अभी जो प्रेजेंट लेवल है थर्ड ईयर में, जब टाइम होता है आपका कमिटमेंट डिसाइड करने का, तो उस समय आपको करेक्ट आप ये सब परीक्षा देके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। राइट। काफी अगर मेरे लाभदायक समय में थर्ड ईयर में होता तो हम तो थर्ड ईयर में दे देते, हाँ, मेरा, हाँ अवश्य हम मैं फिक्स थे, अवश्य हम देता थर्ड हूँ। ईयर में। काफी, अभी मैं कॉलेज से जब मैं कांटेक्ट में रहता हूँ तो मुझे पता लगता है काफी लोगों ने नहीं दिया। काफी लोगों से कि थर्ड ही ईयर तो है, थर्ड ईयर हम लोगों ने पढ़ रखा है सब कुछ, फाइनल करेक्ट ईयर तक सब कुछ पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आपको जो भी कि आपको अपना प्रेजेंट लिमिट नहीं पता रहता है, तो आप अपने फ्यूचर का जब आप पढ़ लेंगे तब का लिमिट आपको अनुमान लगाना काफी ज्यादा समस्या होता है। तो अच्छा ये हो कि व्यर्थ है आप, वो। हाँ, आप लगातार अपने आप को पीयर से कंपटीशन में देखते रहे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे जाना चाहते हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो कैट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो करेक्ट। पीपीओ के लिए ही एंट्रेंस एग्जाम हो। हाँ राइट, या इंटर्नशिप के लिए हो। कंपटीशन एक ट्रूथ है भाई, इसको डिनाई करके फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। कंपटीशन को अगर तुम डिनाई करोगे, तुम केवल और केवल बैक स्टेप ले रहे हो अपने जीवन में। इसलिए कंपटीशन ट्रूथ है, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके लिए प्रिपेयर करो। अब वो सही है नहीं, उस पर वो बाद का डिबेट है, ठीक है, पर वही ट्रूथ है। ट्रूथ वही है, कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। कंपटीशन कंपटीशन मुझे लगता है सही भी है कि अगर आप कंपटीशन नहीं हो रहे हो तो आप, लाइक मीडियोकर्स नॉट रन द वर्ल्ड। These have to be हाँ those people who are very ambitious. They're ready to do the work. They are very determined people, very conscious people. Like they have the ability to continue their work for running things which normal mediocres cannot. So always work to escape the mediocre range. Never stay राइट। there. अब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू शुड नेवर स्टे देयर। और ये आर्ग्यूमेंट को ध्यान में रखो कि कंपटीशन अच्छा है या बुरा है, वो उसको हटा दो। लाइफ में अगर सक्सीड करना है भाई, किसी एक एम्बिशन को अटेन करना है, मतलब स्टेटस ऑफ लग्जरी, स्टेटस ऑफ कार, घर, जो भी है, अगर वो सब के लिए एस्पायर कर रहे हो तो कंपटीशन के थ्रू ही जा सकते हो, और कोई कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है किसी भी क्षेत्र में। तो कॉम्पीट तो करना होगा। नाउ विवेक, टेल मी अबाउट योर जर्नी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जामिनेशन। सो यू ऑलरेडी सेड दैट तुम तभी से प्रिपेयर करना प्रारंभ करती थे सब्जेक्ट्स को जब तुम थर्ड ईयर में आए, और जो सेमेस्टर्स में हो रहा था तुम उसको अच्छे से पढ़ते थे, और अगर वो गेट एग्जाम का सिलेबस था तो तुम उसको अच्छे से करते थे। हाँ हाँ। टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, और टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए, कितने दिन पहले देना प्रारंभ कर देना चाहिए गेट एग्जाम से, और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, मॉक टेस्ट, मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए, इसके इसके विषय में पूरा डिटेल में बताओ। इसके पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा कि 2019 में मेरा गेट रैंक 417 रहा था। 2020 में ये 114 हो गया था। तो फिर गेट का जो बात है, तो टेक्निकली बोला जाए तो सेकंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मैं कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हुआ था। जैसे कि अगर आप किसी भी गेट टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा तो सब कुछ चीज़ कॉमन बोलेंगे। टेस्ट सीरीज, जैसे कि तुमने कहा टेस्ट सीरीज, सभी बोलेंगे टेस्ट सीरीज ज़्यादा दीजिए, सही बोलेंगे एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, सही बोलेंगे क्लास नोट्स को प्रिपेयर करिए। कुछ ना कुछ कॉमन आपको सब सारे गेट टॉपर्स का इंटरव्यू में कॉमन दिख जाएगा। ये सभी करते हैं, सारे जो टॉपर्स है सभी करते हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं तो आप गेट टॉपर नहीं बनने वाले, सीधी सी बात है। टॉपर छोड़ दीजिए, आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, वो भी मतलब हाँ, काफ़ी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हाँ राइट। तो कंपटीशन के लिए मैंने फाइनल ईयर में कंपटीशन रेडी नहीं हुआ था। मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं थर्ड ईयर में डिसाइड किया था कि मैं गेट पे जाऊंगा। फाइनल ईयर हो गया था डिसीजन करते करते। फाइनल ईयर में मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट हो गया था। जब मैंने पहली बार परीक्षा दिया गेट का 2018 में, तो मुझे लगा कि ये कंपटीशन जो मैं सोचा था, इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया। 2017 कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा या कोई दूसरे ब्रांचेस का भी ये चीज़ कॉमन ट्रेंड रहा है कि 2016-15 के बाद से जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है। और सत्य है कि पीएससी में सीट भी कम होती जा रही है। तो फिर 2017 तक मैंने जो कट ऑफ देखा, 2018 में बढ़ गया था वो। 2018 में पेपर के हिसाब से जो कट ऑफ होना चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ये देखा था कंपटीशन बढ़ रहा है। जो मेरा प्रेजेंट लेवल है, जो मैंने कॉलेज में, बस मैंने कंपटीशन के प्रिपेयर स्पेसिफिक नहीं किया था। मैंने टेस्ट सीरीज 2-3 दिया था, मतलब कमिटेड नहीं दिया था। टेस्ट सीरीज मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे पता था मुझे ये पता था मुझे गेट देना है, मैं गेट के कमिट होने को रेडी, कमिट के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या सोचना, मुझे अच्छे से पता लग गया था। लेकिन कंपटीशन में रेडी नहीं हुआ था। तो 2018 के बाद 2018 मैंने परीक्षा दिया था। मुझे लगा कि नहीं, ये तो कंपटीशन मुझे अलग से प्रिपेयर करना पड़ी। मुझे लगा कि मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, क्योंकि अब कंपटीशन में सभी कोचिंग कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी गिफ्टेड लोग होते हैं जो कि बिना कोचिंग के कुछ आगे या फिर सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सही। तो फिर 2018 में फिर मेडीजी चला गया था दिल्ली में, लाडू सराय में मेरी क्लासेस लगती थी।
और वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन टाइप से रहता। मैं सिर्फ अपने रूम से क्लास जाता था, क्लास से रूम आता था, कहीं नहीं आता था। सौभाग्यवश से मेरी बुआ जी के भी घर वहीं था, तो मैं समय समय पे जब मुझे वेकेशंस मिलता था, 2-3 दिन का छुट्टी मिलती, जहाँ नहीं मिलता है, तो मैं अपने घर चले जाता था और बुआ जी के घर चला जाता था। और ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था मुझे। अभी मैं याद करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं सही किया था वहाँ घर जाके, कि हाँ, ऐसा मोनोटोनस लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, आपके मोरल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट मोरल करेक्ट काफ़ी करेक्ट। ज़्यादा, आप कितना भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप कितना भी ज़्यादा सिस्टम से फॉलो करते हो, आप सुबह उठते, आपका डिसाइड, आपको 10 बजे पढ़ना है, आपको 11 बजे पढ़ना है, लेकिन आपका मोरल अगर लो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब आप नहीं पढ़ पाएगा। आपको जो पढ़ने में 1 घंटा लगता है, वो आपको 3 घंटा लगेगा। राइट राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आपका। लेकिन याद रखें कि आपको जितना आवश्यक हो, आप उतना ही अपने आप को एंटरटेन करें। क्योंकि मेडिसिन में जब जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो लगा कि सब कोई बाप थे उस टाइम, इसमें कुछ नहीं आता था, सभी के सभी बाप थे। काफ़ी लोग आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से भी लोग आए थे, आईआईटी मुंबई, बड़े बड़े आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, हर जैसे लोग आते हैं, एनआईटी वगैरह से, ज़्यादातर एनआईटी से होते हैं। सेकेंड ईयर कॉलेज से काफ़ी लोग आते हैं, कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका भी मतलब कोर में इंटरेस्ट होता है, कि कोर में कंपनीज ज़्यादातर अच्छे कॉलेज में आती हैं, सभी गेट को परस्यू करते हैं। करेक्ट। तो फिर आप लोगों को देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जब 2-3 महीना होने लगता है, तो आपको दिखने लगता है कि ना गेट होने, कि गेट नहीं होने वाला। राइट। आप जो स्टार्टिंग के मंथ में जो पढ़ाई हुआ था, वो 3rd या 4th मंथ आते आते लोग भूल जाते हैं। जैसे कि हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था जून में, 7 जून को लगता है हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था। मैं दिल्ली शायद 11 जून को पहुंचा था। तो 11 सबसे पहला जो क्लास सिग्नल सिस्टम का हमारा सबसे पहला क्लास हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर पावर सिस्टम हुआ था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हुआ था। अक्टूबर आते आते 90% जो लोग थे, जैसे कि मैं किसी से डाउट पूछता था कि भाई सिग्नल सिस्टम का ये डाउट बता दो, मेरे से नहीं बन रहा, तो सब कुछ भूल चुके थे। उनको रिवाइज करने के लिए 1 दिन चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है ना, तो उनको, जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तीसरा चौथा मंथ जो सब्जेक्ट पहले फर्स्ट मंथ में जो पढ़ाई किया था, अगर याद नहीं है, तो उनका गेट नहीं होने वाला। नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्योंकि होता है क्या कि आपको कोचिंग होते होते नंबर हो जाता है, नंबर 1 दिसंबर और जनवरी आके बचता है, आपको फिर टेस्ट सीरीज भी देना रहता है, आपको अपने आप को शार्प करना रहता है कि आप समय के लिमिटेड समय के साथ आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो। तो उस समय अगर आप बैठे कि नहीं ठीक है, मैं अब अपना एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 1 हफ्ता लगाऊंगा, दूसरे के 2 हफ्ता लगाऊंगा। अगर 12 सब्जेक्ट होता है, 12 हफ्ता आप बस आपको रिविजन में चला जाएगा। उसमें भी ऐसा होता है, जब 12वां हफ्ता तक पहुंचते हैं, तो आप पहले हफ्ते वाला चीज़ भूल चुके होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब तो ट्रिक ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपने सबसे पहले पढ़ा है, वो आपको अंत तक पूरी तरह से याद रहे, आपसे प्रोफिशिएंट हो। और आपको किसी दिन, आपको जैसे कि जून अक्टूबर तक हमारा नवंबर में हमारा कोचिंग खत्म हुआ था, अगर ऐसा हो आपके साथ कि आपको जुलाई में बोला जाए ठीक है, आज जुलाई है, आपने अभी तक 6 सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैं आज आपका एग्जाम लूंगा, इस एग्जाम में आपका बस जो 6 सब्जेक्ट पढ़ा है वही उसी से प्रश्न आएंगे। अगर आप इस एग्जाम से यही एग्जाम का गेट एग्जाम है, यही एग्जाम डिसाइड करें कि आपका पीएस में होने वाला है या नहीं, तब आपको आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप उस एग्जाम को क्रैक करें उसी समय। करेक्ट। जब बोला जाए, रात में बोला जाए, दिन में बोला जाए, सुबह आपको 4 बजे उठा के बोला जाए कि अभी आपको परीक्षा है, आप रेडी होना चाहिए कि हाँ मैं अभी रेडी हूँ उसको देने के लिए। तो यही ट्रिक है, लोग ये नहीं कर पाते हैं। 3-4 से काफी बड़े सब्जेक्ट होते हैं, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सबको एक साथ कैरी करना, यही ट्रिक है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो आपको गेट हो जाएगा। एक बार गेट नहीं होता, वो दूसरी बार में पक्का कर लोगे। राइट। और मेरे विचार से रिटेंशन इतना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग एडवांस से कंपेयर करें, तो एडवांस में सब कुछ बहुत ज्यादा इंट्यूटिव था और इंटर रिलेटेड था, है ना। जैसे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से इंटर रिलेटेड चलता रहता था, फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, तो एक तरह से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड था सब कुछ। तो और इंजीनियरिंग में जब गेट एग्जाम का आता था, तो पूरा का पूरा विषय ही अनकोरिलेटेड होता है, पूरा अनकोरिलेटेड। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0। इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ कि काफी सारे ऐसे प्रश्न थे जिसमें कि पावर, जैसे कि हमारे लिए पावर सिस्टम, मशीन और नेटवर्क तो सभी के लिए, तुम्हारे लिए भी कॉमन था। इन सबसे मिला के एक प्रश्न रहता था, ये जनरेटर है, जनरेटर में ये नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी आपको सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको, करेक्ट आना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का अर्थ था कि जितना कोरिलेशन 11-12 में था, तीन सब्जेक्ट में, केवल 3 ही सब्जेक्ट में, अभी यहाँ पे होता है 10-11 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट आ जाता है, और उस 12 में से कोई 2-3 कोरिलेटेड होगा, 2-3 कोरिलेटेड काफी है ना। कुछ नहीं होता, सिग्नल सिस्टम काफी ज्यादा अलग रहता है, ये सब बहुत अलग सिस्टम मैथ से, सिग्नल सिस्टम और मैथ कोरिलेशन बनता है, फूरियर सीरीज ये सब हो पाता है। फिर आपका नेटवर्क सिर्फ नेटवर्क को देखा जाए तो नेटवर्क अपने आप स्टैंड अलोन सब्जेक्ट है, उसको किसी और सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है।
जिसने भी बाकी जेई ये सब- एडवांस का अच्छा से प्रिपेयर किया है उसका नेटवर्क अच्छा रहेगा, सिग्नल सिस्टम्स अच्छा रहेगा। अगर एडवांस का प्रिपेयर कोई अच्छे से किया होगा 11 12 में तो उसको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, वो सब सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से रहेगा किया हुआ। और हाँ, कोरिलेशन घटता है। हाँ, क्वेश्चन घटता है। मेन सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की कि जो इंजीनियरिंग होती है काफ़ी डाइवर्स है। आपका जो 11 12 था वो डाइवर्स इसलिए था कि उसमें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ना था, 3 अलग अलग सब्जेक्ट थे, इसलिए वो डाइवर्स था। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, आप एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरफ तो जा रहे हो, सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, नहीं उस डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ होती है। जैसे कि मैं अभी पावर इंजीनियर हूँ, जो लोग एनटीपीसी में जाएंगे वो लोग जनरेशन में रहेंगे। करेक्ट। हम दोनों का जो मतलब फील्ड रहेगा वो काफ़ी अलग रहेगा। वो एकदम अलग चीज़ पढ़ेगा, वो एकदम अलग चीज़ में टेक्निकल एक्सपर्टीज रखेगा, मेरा एकदम अलग चीज़ रहेगा। करेक्ट। तो इसलिए और ये वर्किंग है, आपको अब बस पढ़ना नहीं है, आपको फील्ड में जाके दिमाग लगाना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या अगर बस प्रॉब्लम दिखेगा, सॉल्यूशन आपको नहीं दिखता है। टेक्स्ट बुक में कहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है, ये है तो उस पर ये करना है, आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरीज में वॉक करने के लिए रेडी होना पड़ता है। करेक्ट। तो ये पीएसयूज जानती हैं, इसलिए वो गेट की तरफ देखती है। गेट ऐसा परीक्षा है जो कि ये मतलब डिमांड करता है कि जो विद्यार्थी हो वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास रखे, दे आर रेडी टू फेस द अनचार्टेड वाटर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज को देते रहना चाहिए, भले ही सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, वो मैटर नहीं करता, टेस्ट सीरीज देते रहो देते रहो देते रहो। टेस्ट देते रहना चाहिए, फिर अपना एक शॉर्ट नोट्स रेडी रखना चाहिए, आपको एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए कि आप उसको हमेशा पढ़ते रहें। आपको एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप जब भी कुछ नया सब्जेक्ट पढ़े आप 1 घंटा एटलीस्ट निकाल लें कुछ पुराना ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने के लिए। बस 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उतना काफ़ी है। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होता, आधा घंटा या 15-20 मिनट लगेगा। ये 5 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिटेंशन वापस आ जाएगा। जैसे कि रिटेंशन काफ़ी करना टफ होता है, या आपको सभी सब्जेक्ट करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। प्रतिदिन मेरा कह रहा था हम तो I111 फॉलो करते थे, इमीडिएट रिवीजन आफ्टर 1 डे, रिवीजन आफ्टर 1 वीक, रिवीजन आफ्टर 1 मंथ। हाँ, ये मैं अपना इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबका अपना अलग अलग तरीका अपना अपना होता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये आप खुद से डिसाइड करिए, आपको क्या आप खुद से पता कर लीजिए क्या आपके लिए वर्क करता है, क्या आपके लिए वर्क नहीं करता। हो सकता है कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ के रिटेन कर सकते हैं, हो सकता है वो छोटा छोटा रूटीन होता है, तो आप छोटा छोटा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन ये आवश्यक है, जो रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके अपने पूरे कोचिंग के टाइम में, और बाद में टेस्ट सीरीज आप देते रहे ताकि आप समय के साथ अच्छा प्रोफिशिएंट बन सके। टेस्ट सीरीज कब देना स्टार्ट करना चाहिए? मैं टेस्ट सीरीज जैसे सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि पहले जो परीक्षा होती है, जैसे सपोज कि आप जून से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नवंबर तक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपके पास दिसंबर जनवरी फरवरी के कुछ एक हफ्ता आपके पास बचता है एग्जाम परीक्षा देने के लिए। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप जैसे मैंने कहा कि आप हर अगले महीने आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करते रहें। 5 ही क्वेश्चन बनाए, 10 ही क्वेश्चन बनाए, बस फॉर्मूला देख रही, कुछ ना कुछ करते रहें प्रतिदिन अनुशासन बनाते हुए। जब आपका सब्जेक्ट पढ़ना खत्म हो जाता है तब ये सही समय होता है फुल टेस्ट देने का। आप पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपका जो भी अनुशासन था वो बना रहे। तो जब आपका सब्जेक्ट पढ़ना खत्म, हाँ ठीक है, मेरे पास 14 पेपर थे, 14 पेपर मैंने पढ़ लिया, अब सही समय होता है कि आप फुल टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर सकें। तो आप फिर फुल टेस्ट सीरीज देखिए, फुल टेस्ट सीरीज जो होता है वो काफ़ी सारा पर्पस सर्व करता है। एक तो वो आपको समय के साथ कैसे 3 घंटा में जो प्रेशर झेलना है उसके लिए आपको तैयार करता है। दूसरा ये होता है कि एक टेस्ट सीरीज जो होता है, टेस्ट में जो आपके 14 पेपर या 12 पेपर है उन सभी से प्रश्न होता है। तो ये 3 घंटे में जो आपको प्रिपरेशन होता है, स्वागतम, हाँ सॉरी क्षमा। हाँ तो फिर से स्टार्टिंग से बोलते हैं, परीक्षा जो देना होता है टेस्ट सीरीज जो होता है, तो जब आपका सब्जेक्ट प्रिपरेशन जो होता है, आपका 12 पेपर पढ़ लिया और 12 पेपर आपने पढ़ते वक्त आपने रिटेंशन कंटिन्यू रखा है, कुछ पुराना पढ़ते रहे, 5 प्रश्न सॉल्व करते रहे, सब्जेक्ट टेस्ट देते रहे। जब का ये समाप्त हो जाता है तो आप 1 या 2 हफ्ता ले सकते हैं वापस से, जो आपका कुछ छूटा हुआ होता है वो वापस से आप अध्ययन करने के लिए आप समय दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका नेटवर्क में ट्रांजिएंट अच्छा नहीं है, आप 1 हफ्ता ले लीजिए, 1 हफ्ता के अंदर आप वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप वापस उस पर अपना प्रोफिशिएंसी गेन कर लीजिए। फिर 1-2 हफ्ते बाद जब आपका जितना भी छूटा हुआ कुछ रहता है वो जब रिटेंशन हो जाता है तो आप तैयार होते हैं फुल टेस्ट देने के लिए, ठीक है। फुल टेस्ट के काफ़ी सारे फायदे होते हैं जो कि नॉर्मल प्रिपरेशन में नहीं मिल पाता है। तो 3 घंटा जो होता है, 3 घंटा जो आप टेस्ट दे रहे हैं और 3 घंटा उसका जो कुछ और करते हैं, रिविजन करते हैं या
प्रश्न प्रश्न सॉल्व करते हैं। होता है क्या, ये जो 3 घंटा होता है उसमें आपने जो 12 पेपर रहा था, सभी से प्रश्न होते हैं, सभी से कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं। तो उससे होता क्या कि आपका 3 घंटा के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाता है, आपके आपने अपने 12 के 12 प्रश्न 12 सब्जेक्ट को आपने टच कर लिया है, कुछ ना कुछ आपने हिस्सा टच करके ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और आपका समय के साथ आपने प्रेशर झेलना भी सीख